Hi, Sarvesh. Hi, Preeti. Hope you're good. Yeah, I'm good. What about you, Sarvesh? I'm good. I'm good. Thank you so much for taking out time. I understand that I was checking your schedule. You had a packed day, uh, Yeah, participating in different events. So I hope all went well. yeah. Thanks for giving me opportunity to have a word with all the viewers and you. And yeah, it was a packed day, but yeah, it was a gala day, definitely. I'm so glad, Preeti. Thank you so much, everyone. We are in on Instagram Live with Preeti Jangar, the founder of Lal Sakhi Foundation, and I welcome on behalf of everyone at Catalyst to join this session and interact with Preeti. I'm Sauravishwar Sen, founder and chief mentor of Catalyst. Very keen to know about Preeti's story, Preeti's work, Preeti's vision, Preeti's mission, Lal Sakhi Foundation's, uh, uh, the entire impact story that they're generating. And Preeti today will be also talking sharing with us how menstrual health and hygiene sector is evolving to be like a sector. I mean, I'm already using the word sector, whereas menstrual health and hygiene might be looked at as sometimes as a problem statement. It is looked at sometimes as a in a situation which different uh, communities are in different formats. So before we start this interaction, Preeti, I would like to share a little bit of insight into Preeti's work, and I'm not going to do a very elaborate introduction because Preeti's work is truly about work. Just a few days back, Lal City Foundation started their pilot project, Preeti, um, in Rajkot, right? And Yeah, that's such a heartening news for all of us. So congratulations on that. That thank you you. are taking menstrual health and hygiene in a way that is reaching more and more women. And I am using Preeti's word from the day I know her and I've interacted with her is that कि women का जो choices है उसको expand करना चाहिए. That's what like Preeti believes in a lot. Hmm. So Yeah. Preeti, straight coming to the point, if you would like to share a little bit about your story, कि what made you think of conceiving लाल सखी और कैसे आप काम शुरू किए, क्योंकि यहाँ पे Hmm. हमारे जो ऑडियंस है बहुत लोग ऐसे हैं कि दे आर स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हेल्थ राइट्स, एक्सेस, जेंडर इक्वालिटी का भी जो एक बहुत इवॉल्विंग स्पेस है उसमें काम करना चाहिए, मगर बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है कि हाउ टू स्ट्रक्चर दैट वर्कआउट. तो अगर आप Hmm. अपने स्टोरी से यू वुड लाइक टू शेयर थोड़ा स्निपेट्स ऑफ योर वर्क एज ऑन डेट. Sure, sure. So, as you said, it's a sector. So, definitely, I come from natural sciences background. So, I've done my graduation in physics, chemistry, mathematics, and I hail from Saharanpur, Uttar Pradesh. And then, completing my graduation in natural sciences, I switched to social sciences. So I have done my master's in social work from Tata Institute of Social Sciences. There I got different perspectives. Then there only I got to know कि ये भी एक सेक्टर है, क्योंकि नेचुरल साइंसेज की जब हम बात करते हैं, एज यू सेड, कि हमको लेबोरेटरी होती है जिसमें हम केमिकल टेस्टिंग करते हैं, बट हमको हिस्ट्री के लिए या फिर सोशल साइंसेज के लिए सिर्फ थियोरी पढ़ाया जाता है, नो प्रैक्टिकल्स एंड दैट काइंड ऑफ फील्ड वर्क, that kind of exposure I got in TISS. So I'm very thankful to TISS as well. Some all my professors and all my classmates as well. There only I got to know this is also a sector where we can, look forward as a career option, as an, as a employee.
employability option, as an entrepreneurship journey, that kind of. So अगर हम सेक्टर की बात करें तो ये अच्छा वर्ड है, लेकिन अभी भी जैसे हमारी सोसाइटी में ज्यादातर इंजीनियर्स, सीए या फिर कॉमर्स ले लिया, बायो ले ली तो डॉक्टर बन गए, तो दैट्स द सेम फिनोमेना। मैं जिस फैमिली से आती हूँ तो डिफरेंट यही था, मेरे फादर ने पीसीएम से पढ़ाया है कि सोशल साइंसेस का कोई बैकग्राउंड नहीं था, तो टीआईएसएस से ही मैंने सब सीखा। देयर ओनली आई गॉट माय कैंपस प्लेसमेंट विद गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश एज अ कंसल्टेंट. So where I got opportunity, and I'm lucky enough, then I got exposure to the most underprivileged villages like Alirajpur, where the literacy rate is very low, right? So where I got to know this is a problem statement, period poverty. So where I have resigned from my job and started, you have used the word conceive, how I have conceived. Yeah, it's kind of a baby child for me, Lal Sakhi, the Women's Voice Foundation. So where we are on a mission, how we can combat period poverty, and we can make it accessible, how we can give a bucket of choice to the women. A woman has to decide what is best for their best of interest, not me and you, and not government or any other CSR, right? So currently if you see most of the CSRs in government only emphasizing on uses of sanitary napkin, which is not a bucket of choice. So where what Lal Sakhi different is doing is, we are pioneer in India. So what we are doing is, we have started one pilot project 2.5 years back in Bhopal. It's near to village, near to Bhopal. It's a village, because I believe working with rural and tribal village, because some starting period of my childhood spent in village only. तो मेरा गांव से कुछ ज्यादा गहरा रिश्ता है. तो in Rajkot also we have started a pilot project. So after that success, जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो वहाँ के जिला प्रशासन के साथ में हमने कोलैबोरेशन किया है, तो बाकी 600 गांव में भी ये हो जाएगा. तो करंटली अभी हम 9 राज्यों में काम कर रहे हैं. So yeah, that's it, I think. I hope you got your answer. Sure, thank you. I mean, that's amazing कि आप like 9 राज्यों में काम कर रहे हैं, एंड ये तो बताना जाहिर है कि प्रीति, इन अक्रॉस द 9 states इन अ कंट्री लाइक इंडिया बहुत सारे डिफरेंसेस होता है, राइट? मतलब दोनों स्टेट के बीच हम लोग देखते हैं, दोनों जिलाओं के बीच इतना डिफरेंस होता है कभी एक ही सेम स्टेट के अंदर. तो अगर आप बता पाएंगे कि इतना डाइवर्सिटी के बीच में, क्योंकि बहुत सारी कम्युनिटीज या फैमिली लेवल में हम लोग देखे हैं, सुने हैं कि वो सोच बहुत अलग होता है. तो एज अ सोशल वर्कर, एज अ सोशल इनोवेटर, जब आपको पता है कि देयर इज अ प्रोडक्ट दैट यू बिलीव इन, और सपोज अ फॉर्मेट इन विच यू बिलीव इन, आप कैसे ये कम्युनिटीज को इकट्ठा करके उनको वही सोच के आधार पर यू काइंड ऑफ कंडीशन देम, ये अगर आप थोड़ा बता पाएंगे, बिकॉज ये एक बड़ा चैलेंज है इंडिया में कि पीपल डोंट फाइंड द यूनिफॉर्मिटी, है ना, हर रीजन में. So how do you manage that? Like 9 states, and how are you like kind of planning it across here? या सो मैं जो आपने क्वेश्चन पूछे हैं वो 2 पार्ट में बेसिकली पूछ लिए हैं. तो मैं फर्स्ट पार्ट का आंसर देना चाहूंगी कि डाइवर्सिटी है. इंडिया इज नोन फॉर डाइवर्सिटी, वेदर इट इज लैंग्वेज डिफरेंट, वेदर इट इज कल्चरल डिफरेंसेस. सो वी आर रिच इन दैट काइंड ऑफ थिंग, एंड वी आर वेरी प्राउड. वी हैव a lot of diversities, but we have similar kind of a format के अगर हम बात कर रहे हैं, भले हमें लैंग्वेज नहीं समझ आ रही है, लेकिन जो हम कहना चाह रहे हैं, द एग्जैक्ट पर्पस ऑफ द कम्युनिकेशन, राइट, वो समझ हो जाता है. लाइक वी हैव बीन वर्किंग इन Tirunelveli in Tamil Nadu, and I hail from North India. Even we are working with Calcutta with the sex workers, right? So it's not something about कि हमारा language barrier है. Even we are
आर वर्किंग इन महाराष्ट्र ऑल्सो, MP ऑल्सो, हरियाणा, तो सब कुछ होता है, दैट इज अ स्किल. सो आपने पूछा कि कैसे करते हैं, तो इट्स अ बिग क्वेश्चन, आई कैन नॉट डिफाइन इट इन 5 minutes. और सेकंड क्वेश्चन, so first option is diversity, second question is how do we do this. So this is a skill. लाइक अगर एक डॉक्टर से पूछा जाए कि आप ये काम कैसे करते हैं, आप फीवर कैसे ठीक कर देते हैं, सो इट्स अ स्किल. आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि पॉलिसी और एग्जीक्यूशन के बीच में जो गैप होता है, right? So that is a community building process, rapport building process, a lot of campaigning process, which I have been learned from TISS. During my curriculum from social work in children and family. All right. So this is a skill we have been taught by our professors, our supervisors, and you know it's not something कि आपको ये आपने वहाँ पे पढ़ा और आ जाएगा. You know you will have to think pragmatically कि उसका execution और policy के बीच में gaps क्या है. तो वही सब हुआ. It took me around 4 years, 2 साल की पढ़ाई और 2 साल फिर गवर्नमेंट के साथ काम करने के बाद, and then the child was born. Right? Yeah. Wonderful. I mean, congratulations once more. एक और एक बात मेरे दिमाग में आया, लेकिन आई वांटेड टू आस्क यू कि हम लोग देखे हैं लाइक सिंस लाइक अ मूवी लाइक पैडमैन केम where you know Akshay Kumar actually really kind of I mean spoke about the entire space of menstrual health and hygiene. हम लोग नोटिस किए कि पैडमैन के रिलीज के बाद काफी सारे फोकस, रिन्यूड फोकस मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन सेक्टर में हुआ. आप शायद लाइक आपको मालूम होगा या आपको ये भी मालूम हो सकता है कि वो फोकस कितना स्ट्रेटेजिकली लिया गया था. मेरा यही प्रश्न है प्रीति आपसे कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन सेक्टर, मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन अवेयरनेस जैसे women are important because you know they embody and they are part of the phenomena, right? The process which is the core of your work. How important do you consider men, people who are non-menstruating, to play the role in helping this sector progress and evolve? Right, right. So you mentioned very beautifully कि पुरुषों का जो एक योगदान है वो किस तरह से इसमें रह सकता है, या फिर अगर हम अक्षय कुमार की मूवी पैडमैन की बात करें तो वो एक कन्वेंशनल मेथड है जो अब से 10 साल पहले या फिर 15 साल पहले, जब तक वो जो न्यू मैथडोलॉजीज है हाउ टू यू नो मैनेज मेंस्ट्रुअल हाइजीन वो नहीं आई थी. बट इफ वी टॉक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यू नो राइट नाउ, अगर हम कन्वेंशनल मेथड्स के थ्रू ना जाएं तो काफी यू नो अपडेटेड अपग्रेडेड टेक्निक्स आ गई. इफ वी टॉक अबाउट मेंस्ट्रुअल कप, तो बहुत सस्ता, बहुत सुगम, बहुत ही सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली, इफेक्टिव एक तो प्रोडक्ट है ये. दूसरा ये है कि पुरुषों का कैसे योगदान रहेगा. आई विल डेफिनेटली वुड लाइक टू मेंशन हियर कि गर्ल चाइल्ड ड्रॉप आउट रेट रूरल पार्ट में हमारा बहुत हाई है. वो इसी वजह से है क्योंकि घर में मोस्ट ऑफ द रूरल यू नो जो सोसाइटी है हमारी वो उसको एक्सेसिबल नहीं है. इवन सैनिटरी नैपकिन भी नहीं है. Forget about menstrual cups and all, which are only available on e-commerce platforms like Amazon, Walmart, Flipkart and etc. Right? So अगर हम ग्रामीण अंचल की बात करें तो वहाँ पे ड्रॉप आउट रेट इसी वजह से ज्यादा है क्योंकि जब एक लड़की को पीरियड्स क्लास में आ जाते हैं, राइट, तो एक तो शौचालयों में इतनी स्वच्छता नहीं हो पाती. इवन अर्बन में भी अगर आप देखें तो अर्बन में ही नहीं है, रूरल में तो यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो वो जो है ड्रॉप आउट रेट है पुरुषों का ये बहुत ज्यादा रहता है कि लड़कियों को शर्म आती है कि हम कैसे यू नो अगर थप्पा लग जाएगा तो टैबू होता है, तो इसीलिए ड्रॉप आउट रेट है. तो अगर हम पॉलिसी लेवल पे बात करें तो इसके खिलाफ अभी कुछ जैसे हरेसमेंट के लिए हमारे पास काफी पॉलिसीज हैं, लेकिन अगर मेंस्ट्रुएशन को लेके अगर किसी का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना, किसी को बुलिंग हो रही है, तो इस पे भी अभी कोई कानून अभी तक इंडिया में नहीं है इसको लेके देखें तो. अगर हम मेंस्ट्रुअल लीव की बात करें
पॉलिसी लेवल पे, तो वो भी बहुत कम गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट इस चीज को फॉलो करते हैं, है ना। तो मेन हैव द पावर एज वी आर लिविंग इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, मैन लेड इट। तो पुरुषों से काफी आकांक्षाएं हैं और उम्मीदें हैं कि वो इन सब पॉलिसीज लेवल पे सोचें, उनका ये योगदान रह सकता है जिनके पास पावर है। और जो मेन सी पार्टनर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सो दे उनसे मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ कि वो उन चीजों को भी समझे कि दे आर द विमेन, यू नो, दे हैव दैट काइंड ऑफ, यू नो, मैं तो इस चीज को वरदान ही मानूंगी, है ना। बिकॉज आई हैव, श्योर। वी आर द विमेन हैव दैट काइंड ऑफ, यू नो, चांस कि हमने, हमको भगवान ने चुना है रिप्रोडक्शन के लिए, है ना, इस सृष्टि का निर्माण करते रहने के लिए। तो उसी चीज से जुड़ा हुआ मेंस्ट्रुअल हाइजीन है ना। तो उस चीज को भी फ्रेंड्स समझे, बेटे समझे माओ के, तो मैं ये उनसे योगदान उनका चाहूंगी। राइट, राइट। प्रीति, थोड़ा बता दीजिए कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन का जो काम है, जो अभी भी लाइक यू नो आप बता रहे थे, पॉलिसी लेवल में काफी काम हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन लेवल में भी डेफिनेटली काम होने का काफी स्कोप है। यंग एस्पिरेंट्स जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन की तरफ उनका दिलचस्पी है, दे हैव इंटरेस्ट, उनका शायद आइडियाज भी है, मगर शायद उनको पता नहीं है कि यू नो हाउ टू स्टार्ट ऑफ। सो ऑफ कोर्स आई मीन लाल सखी फाउंडेशन, आई नो फॉर श्योर कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स को यू नो दे हैव गिवन, यू हैव गिवन एक्सपोजर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में। इन टर्म्स ऑफ, अगर हम आपसे पूछे, अगर ऐसा आपको लगे कि ऐसा कोई रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन में। ओके, सो वी कैन स्टार्ट विथ इट। तो दो माध्यम है इसके, एक तो एंटरप्रेन्योरशिप और दूसरा क्या है, पॉलिसी लेवल पे अगर आप एज एन एम्प्लॉय काम करते हैं, राइट, एज अ कैंपेनर काम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल साइंसेज में अगर आपको अपना करियर देखना है, और मेंस्ट्रुअल हाइजीन में काफी काम है, बिकॉज इंडिया इज अ अंडर डेवलपिंग कंट्री और अ डेवलपिंग कंट्री, यू नो, इन बिटवीन। So we have a lot of scope. So only 34% women have access to safe menstrual hygiene products. So you can say rest of 66% do not have access. So scope तो ऑलरेडी वी हैव अ लॉट ऑफ स्कोप। सो अब से 10 साल पहले या 20 साल पहले तो इन मुद्दों पे बातें भी नहीं होती थी। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, बट अब से शायद 10 साल पहले हम इतने खुशियों से नहीं मनाते थे, राइट। तो धीरे धीरे चीजें इवॉल्व हो रही है, और जब हमारे पास डिमांड जनरेशन बढ़ रहा है तो मार्केट भी बढ़ रहा है, राइट। 2014 से मतलब 14 में इंप्लीमेंट हुआ था, 12 में सीएसआर वाला है। तो इंडिया में यू नो ना 100 यूनिकॉर्न्स भी हुए हैं, तो उनके सीएसआर भी होंगे डेफिनेटली। एंड देन होंगे तो विमेन और हेल्थ तो डेफिनेटली होगा ही उसमें, है ना, राइट, बिकॉज दीज आर द मोस्ट वल्नरेबल काइंड ऑफ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी यू कैन मेंशन हियर। तो स्कोप तो बहुत है करियर के लिए, दोनों है। एज एन एंटरप्राइज भी आप उसको देख सकते हैं, एज एन एम्प्लॉय भी देख सकते हैं, एज अ पॉलिसी मेकर देख सकते हैं। यू नो, इट डिपेंड्स अप टू यू, हाउ डू यू परसीव इट, हाउ डू यू सी, हाउ मच इंटरेस्ट यू टेक। राइट, दैट इज क्वाइट मोटिवेटिंग एक्चुअली। यू नो जो लोग सुन रहे हैं आपको, या यू नो दे आर प्लानिंग अ करियर इन दैट स्पेस, दैट इज अ वेरी मोटिवेटिंग न्यूज फ्रॉम फ्रॉम प्रीति। एक चीज हम फिर से आपसे पूछना चाहते हैं कि स्टार्टअप का जो स्पेस है, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, स्टार्टअप स्पेस में हम लोग देखे हैं कि कोई भी स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर को उनका जो इन्वेस्टर के साथ रिलेशनशिप है, या जो पार्टनर्स रहते हैं, एंड इन्वेस्टर्स हम लोग काफी देखे हैं कि यू नो दे हैव अ पैटर्न ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पोटेंशियल ऑफ अ सेक्टर, राइट। सो प्रीति, आपको क्या लगता है कि इन टर्म्स ऑफ कि इन्वेस्टर का जो एडुकेशन है, मतलब जो पोटेंशियल इन्वेस्टर है जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेंगे, उनको बूस्ट करेंगे, आप डू यू आर यू सीइंग अ चेंज कि इन्वेस्टर
मेंटालिटी में मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन को लेकर वो लोग भी अभी दे आर लुकिंग फॉर आइडियाज? Yeah, definitely they are looking for because the concept of menstrual hygiene जो है वो अभी evolve धीरे धीरे हो रहा है ना, और उसमें entrepreneurs भी काफी कम है. If you see the manufacturers of menstrual cups, so which are it is not manufactured in India, so बाहर से ही, बाहर विदेशों से ही इसको मंगाया जा रहा है, तो उसमें तो काफी स्कोप है. अगर की बात करें, डोनर्स फंडर्स जो कि सोशल सेक्टर में टर्मिनोलॉजी यूज होती है, तो उनका माइंडसेट डेफिनेटली चेंज हो रहा है. आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं जिसको फंडिंग मिल भी रही है ना. देयर आर मेनी प्रोजेक्ट. अगर आप उनके पर्सपेक्टिव की बात करें तो दे आर इंटरेस्टेड, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स ही नहीं. सच्चाई तो ये है कि दे हैव दैट काइंड ऑफ सेंस के हाँ ये एरिया है पीरियड पॉवर्टी, वी आर डेवलपिंग कंट्री एंड वी आर सेइंग वी हैव दिस दैट एंड समथिंग, बट वी आर द कंट्री, वी आर सफरिंग फ्रॉम पीरियड पॉवर्टी. फेज की जो आपने बात की है कि ये एक स्टार्टअप का फेज होता है, तो यस दिस इज अ फेज. This is a startup, social startup, or any of the startup. They have to, or as an entrepreneur or as a startup, both have to face a journey, right? And it's an ongoing journey. You have to manage with all the things, whatever it is, influencing the people, whatever it is, impact assessment, whether it is executing phase, whether it is innovative kind of project ideas. तो वो बहुत सारी चीजों का एक सम्मेलन होता है, तब जाके ये सब चीजें आती हैं. इट्स जर्नी, और अप्स एंड डाउन्स तो लगे ही रहते हैं, लेकिन हमें अपनी हिम्मत को बनाए रखना पड़ता है. yes. बिल्कुल प्रीति. मेंस्ट्रुअल राइट्स के बारे में अगर हम लोग थोड़ा चर्चा करें, पहले तो ये प्रश्न है आपसे कि मेंस्ट्रुअल राइट्स और मेंस्ट्रुअल राइट्स के सराउंडिंग कोई सोशियो लीगल प्रोटेक्शन, मतलब कानून या आपके लॉ, डू दे हैव अ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म फॉर विमेन? क्योंकि आप मेंस्ट्रुअल एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बताए थे एकदम शुरुआत में. सो is there a law or anything that women should be aware of connected with their menstrual rights, Preeti, if you would like to highlight that? So menstruation is a basic human right. Right. It is considered, but right now अभी policy level पे या legal kind of that उस sense में तो अभी I am not aware of in Indian Right. context. बट हाँ ये है कि अगर हम जेंडर इक्विटी SDG 5 की बात करें, राइट, तो एक लड़के में और लड़की में अंतर क्या है कि एक लड़के को अपने पर्सनल हाइजीन मेंटेन के लिए अपने अपने फादर पे, अपने बेटे पे, या फिर अपने किसी भी रिलेटिव पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता. बट अ वुमेन और अ गर्ल इज उसको डिपेंडेंट होना ही पड़ता है अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए किसी ना किसी पे. अगर उसको सैनिटरी नैपकिन खरीदने, बिकॉज वीमेन आर डिप्राइव्ड फ्रॉम दैट काइंड ऑफ लाइवलीहुड ऑप्शंस एज वेल, राइट, ना ILO की रिपोर्ट के अनुसार भी और वैसे भी. तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, या डिपेंडेंसी इज देयर. Right. Okay. One final question, I think, to round our discussion tonight, कि you have been very vocal कि women के choices को expand करना है, and वो choices के बीच में, like, you have been also equally vocal about women adopting menstrual cup in over like a plastic sanitary napkin, जो आप like you've tried to vouch upon, and tampons, because बायोडिग्रेडेबिलिटी का एक बहुत कंसर्निंग एक सेक्टर इवॉल्व हो रहा है. लाइक nations are struggling with managing waste and non biodegradable products, to be more specific. We Right, know that right. people are aware of menstrual cups. Like, अगर आप अपने हिसाब से menstrual cup के बारे में हमारे ऑडियंस को थोड़ा बता सकते हो, like अपने अंदाज से, like the experiences that you have gained, that would be really helpful for our session. Yeah, I was searching one menstrual cup. Okay. Sure, no problem. You can All take right. your time. Yeah. So Yeah. yeah,
Yeah, just give me a second. Sure, no problem. Yes, we have a menstrual cup with us. So this is a menstrual cup, and this is not made of any plastic or anything. This is made of medical grade silicon, and you can use it, or one can use it up to 8 to 10 years, and it costs around 250 rupees. तो इसको menstrual cup कहते हैं. ये कप की शेप में है और ये नीचे से बंद होता है, ऊपर से खुला होता है, राइट. और ये प्लास्टिक का नहीं बना हुआ है, ये मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन का बना हुआ है और डॉक्टरों द्वारा ये प्रमाणित है कि ये महिलाओं की हेल्थ के लिए, हमारी स्किन के लिए इट इज सेफ. एंड और एक महिला इसको 8 से 10 साल तक यूज कर सकती है एक ही कप को, यू नो, द सिंगल कप. सो यू आर सेविंग लॉट ऑफ मनी एज वेल. तो हमारा तो सीधा कहना है कि जो पैसा आप विस्पर, स्टे फ्री और बहुत सारे प्लास्टिक के चीजों को इकट्ठा करने में लगाते हो, अगर आप उस पैसे को अपने आयरन में लगाएं, बिकॉज महिलाओं में आयरन डिफिशियंसी बहुत ज्यादा है इंडिया में, राइट. तो वो पैसा अगर हम लोग अपने आयरन में लगाएं और इसको यूज करें, तो आई थिंक दिस इज विच इज इकोनॉमिक, राइट. तो इसको हम ऐसे करके स्क्वीज करके ऐसे यूज कर सकते हैं, राइट. सो इट इज वेरी सिंपल. And I also would like to talk about sanitary napkin, which takes around 500 to 800 years to degrade. You can search it on Google, and which is not eco-friendly. But yeah, it takes time to switch from one product to another product, and you can find many ways on YouTube, on our website also, lalsakhi.in, how to use menstrual cup, how to keep it safe, how to sterilize it. इसमें हमें स्वच्छता का काफी ध्यान रखना होता है. इसको यूज करने से पहले भी हमें इसे स्टरलाइज करना होता है, यानी गर्म पानी में 100 डिग्री सेल्सियस पे 4 से 5 मिनट या 8 मिनट तक इसको, अप हाईएस्ट है 8 मिनट से ज्यादा नहीं उबालना है. गर्म पानी में जितना ये डूब जाए, जैसे हम चावल को बनाते हैं नॉर्मली, जैसे छोटे बच्चों की निप्पल को हम साफ रखते हैं, चूहों से बचा के रखते हैं वरना चूहे खा जाते हैं, राइट. तो डब्बे में पैक करके रख दें, और जब आप इसको इस्तेमाल कर ले 3-4 दिन, तब भी आप इसको से ही स्टरलाइज करके रखें. दो चीजें इसमें करनी है. एक बर्तन इसके लिए पैन बना ले, राइट. तो वो बेहतर रहता है. मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मेरे को 4 साल हो गए हैं यूज करते हुए, एंड आई हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी. एंड अभी हमारे लगभग 2 से 3 हजार का हमारा रीच आउट है, जिनका डेटा हमारे पास है. उन महिलाओं को हमने, गांव की महिलाओं को हमने सिखाया है यूज करना. डायरेक्ट जो हमारे बेनिफिशियरीज है, इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज तो काफी सारे हैं. या आई थिंक ये एक बहुत अच्छा बात आप दोहराए कि लाइक where do you want to spend your money, वो prioritization के लिए you also need a product available, right? that is health economics. We have a subject in TISS, health economics. Absolutely. I think this is fascinating, Preeti, and I'm so happy कि हम लोग आज ये सेशन कर पाए. और ये सेशन में definitely this is not the end of our discussion. हम लोग चाहेंगे कि people who are watching us, people who will be following our video henceforth, क्योंकि this video will be there on our pages. You consider the choices जो आपके सामने हो, choices in terms of also working for menstrual health and hygiene. ये भी I want to add, and from the point of view of Preeti, who is an innovator, an entrepreneur, a social worker, a woman, someone who is also very clear about the balance, the gender equilibrium, जो प्रीति दोहराए हैं अपने philosophy of work में. We would like to really see menstrual health and hygiene become an overarching sector, जो हमारे कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स में भी डिस्कशन हो, जिसके बारे में एकदम ओपनली चर्चा हो पाए, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में और चर्चा हो. प्रीति, जिसके बारे में हमारी ब्यूरोक्रेसी बात करे, हमारा लेजिस्लेचर बात करे. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. थैंक्स फॉर एडिंग दोस पॉइंट्स. आई मीन दैट इज हाउ अ सीजन प्रैक्टिशनर नोज कि what needs to be done. So we would love to see that sector evolving. We would love to see और भी young minds
support Preeti's work. Lal Sakhi Foundation, from all of us in Catalyst, we would like to see it blossoming and expanding across not only in our country but definitely across the globe. Preeti, thank you so much. ये time बिताने के लिए. We didn't realize कि half an hour में हम लोग इतना कुछ actually technical details से start करके realities के बारे में भी समझ पाएंगे. We wish you all the Yeah. best, Preeti, and I also thank you so much for the demonstration of the cup. This Yeah. truly Thank you so much. sums up, our purpose to create more awareness in our aspirant community within our stakeholder network. From everyone Thank you so much. at And Catalyst, yeah, thank you so much, and happy Menstrual Hygiene Day to all of the viewers and to you as well. Yeah. thank you so much. Happy Menstrual Hygiene Day to all of you. Thank you, Preeti. और हम उम्मीद रखते हैं कि लाइक हम लोग आगे बढ़ के और भी काम एक साथ कर पाए. And Sure. we would also, it would be like, this is a session to actually speak of menstrual health and hygiene in a more actionable way, right? So, Sure. बहुत बहुत Thank you so धन्यवाद much. आपके time के लिए. Thank you so much. Yeah. And we will catch Thank up you. soon. Thanks a lot, I'm viewers, happy. for staying with us. We are very happy, Preeti. Thank you, viewers, for staying with us on Instagram Live, taking out your time, spending with us, and we would be catching up with all of you very soon. Thanks a lot. Take care. Thank you so much.